For this, we will complete with the syllabus. Okay, so let's start with chapter number 2, web design. Web design. Okay, so in this chapter, you are supposed to learn what are the different principles of effective web design. Okay, first we'll discuss what actually effective web design is. Okay, then we will come to know how to develop the website, how to publish the website on the web server. All the theory concepts related with this topic you will come to know in the chapter. ठीक है, कुछ भी प्रैक्टिकल यहाँ पे बेस नहीं है, completely theoretical chapter है, web design. ठीक है, so first we'll discuss about concept of effective web design. ठीक है, so let's search it on net. Concept of effective web design. Yeah, or your aim to learn this subject is after learning this subject you will be able to develop your own website, है ना. दो टाइप के वेबसाइट्स होते हैं, स्टैटिक वेबसाइट एंड डायनामिक वेबसाइट. Static website you can develop by using only HTML. If you want to develop dynamic websites along with HTML, you can use some scripting languages like JavaScript or PHP. Okay. So what are the website you will design that must be effective website? ठीक है, अगर आपका वेबसाइट आपने जो डेवलप कर रहे हैं अगर और या तो फिर किया है वो अगर इफेक्टिव वेबसाइट है तो ही साइट विजिटर्स आपके वेबसाइट को रेफर करने वाले. अगर आपका वेबसाइट अगर इफेक्टिव नहीं है कौन आपके वेबसाइट को रेफर करेगा. आपने डेवलप तो किया है वेबसाइट, है ना, आपने वेबसाइट डेवलप किया है खुद का, लेकिन वो इतना इफेक्टिव नहीं है तो कौन साइट विजिटर आपके वेबसाइट को विजिट करेगा ना. इन ऑर्डर to visit your site by different site visitors, your website must be effective website. Okay, because when you develop a website, once you publish a website on the web server, that same website may be accessed by millions of site visitors globally. एक वेबसाइट को कितने क्लाइंट साइमल्टेनियसली एक्सेस कर सकते हैं, करोड़ ऑफ पीपल. ठीक है, तो आपका अगर आपको काउंट बनाना कि आपके ज्यादा से ज्यादा साइट विजिटर्स आपका वेबसाइट अगर रेफर करे तो आपका वेबसाइट उतना इफेक्टिव होना चाहिए. अगर आपका वेबसाइट ही इफेक्टिव नहीं है उतना तो साइट विजिटर विल ट्राई टू इग्नोर योर वेबसाइट. अगर आपका वेबसाइट इफेक्टिव नहीं है नो साइट विजिटर विल विजिट योर वेबसाइट. If you want that more and more site visitors should visit your website, for that your website must be a effective website. Okay, for example in real life also to perform online transaction, अगर आपको कुछ मोबाइल फोन या तो फिर ठीक है मोबाइल फोन अगर आपको परचेस करना है, ऑनलाइन मोबाइल फोन परचेस करना है तो देयर आर डिफरेंट ई-कॉमर्स वेबसाइट्स आर अवेलेबल थ्रू विच यू कैन परचेस द मोबाइल फोन. ठीक है, एग्जांपल लाइक flipkart.com है, google.com है. ठीक है, बहुत सारे ई-कॉमर्स वेबसाइट्स है जहां पर आप मोबाइल फोन ऑनलाइन परचेस कर सकते हो. लेकिन आप कौन सा साइट विजिट करोगे जो आप इफेक्टिव आपको लग रहा है. ठीक है, whatever the website is effective, you will prefer that website and you will perform the transaction through that website only. What I want to say here is there is a lot of competitions. ठीक है, आपको जो भी वेबसाइट डेवलप करना है तो आपका अकेले का वेबसाइट नहीं है और बहुत सारे ऑप्शंस है साइट विजिटर के लिए. तो आपका वेबसाइट आपने जो भी डेवलप किया है और स्पेसिफिक पर्पस, ठीक है, वो अगर इफेक्टिव वेबसाइट है तो ही साइट विजिटर्स आपका वेबसाइट को रेफर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा साइट विजिटर आपकी वेबसाइट को विजिट करेंगे. अगर आपका वेबसाइट आपने जो डेवलप किया वो अगर इफेक्टिव नहीं है so site user will try to ignore your website. They will try to prefer some other websites, similar websites that are effective. Okay. So when you will develop the website, your website must be effective website. Okay. So what are the factors if you want to develop the effective
इफेक्टिव वेबसाइट। आपका वेबसाइट इफेक्टिव वेबसाइट है ऐसा कब हम बोल सकते हैं? सो देयर आर डिफरेंट फैक्टर, देयर आर डिफरेंट प्रिंसिपल्स आर गिवन। If those principles are fulfilled by your website, we can say that your website is one of the effective website. Okay, so on this web page, those top 10 principles for effective websites are given. Okay, so first is purpose of your developing the website. आप जो website develop कर रहे हो वो किसके लिए डेवलप करें, कौन है टारगेट विजिटर्स, कौन है, आपके वेबसाइट डेवलप करने का पर्पस क्या है? ठीक है, डिफाइन इट प्रॉपरली एंड अकॉर्डिंगली द लुक एंड फील ऑफ योर वेबसाइट में गेट चेंज। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पर्पस कि आप किस पर्पस के लिए आप वेबसाइट डिजाइन कर रहे हो। ट्राई टू एनालाइज द पर्पस ऑफ डिजाइनिंग दिस वेबसाइट एंड अकॉर्डिंगली जो भी लुक या तो फील होगा आपके वेबसाइट का वो पर्पस के अनुसार चेंज हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर ई कॉमर्स वेबसाइट है तो उस वेबसाइट का जो लुक एंड फील समवॉट डिफरेंट फ्रॉम द वेबसाइट विच आर डेवलप्ड फॉर किड्स। ठीक है, किड्स से रिलेटेड भी बहुत सारे वेबसाइट्स है, ई कॉमर्स से रिलेटेड बहुत सारे वेबसाइट है, बैंक से रिलेटेड बहुत सारे वेबसाइट है। तो अगर आपने ये जो एग्जांपल अलग अलग वेबसाइट का देखा तो पर्पस अलग अलग है वेबसाइट का। ठीक है, जो बैंक से रिलेटेड वेबसाइट है उसका लुक एंड फील उसका सब कुछ अलग होगा। जो किड्स से रिलेटेड वेबसाइट है उसका लुक एंड फील अलग होगा। जो ई कॉमर्स से रिलेटेड वेबसाइट है उसका लुक एंड फील अलग होगा। सो अकॉर्डिंग टू पर्पस यू आर सपोज टू डिजाइन द वेबसाइट। ठीक है, अगर आप बैंक स्पेसिफिक बैंक के लिए वेबसाइट डिजाइन करना चाहते हो और उसका लुक एंड फील किड्स को जैसे वेबसाइट चाहिए वगैरह वैसे आपने लुक एंड फील दिया है ना। आपने बहुत सारे किड्स के वेबसाइट भी रेफर किया होगी जो एनिमेटेड वीडियोस वहाँ पे वेब पेजेस के ऊपर इंसर्ट किया होता है, बहुत सारे एनिमेटेड इमेजेस वगैरह इंसर्ट किए होते हैं। तो किड्स को वो कंटेंट देखने में थोड़ा एंटरटेनमेंट होता है। तो अगर उस तरह से अगर आपने बैंक का अगर वेबसाइट डिजाइन किया तो बहुत सारे एनिमेटेड वीडियोस अगर आपने इंसर्ट किए वेब पेज के ऊपर तो उतना इफेक्टिव आपका वेबसाइट नहीं कहना चाहिए बैंक का। हाँ, आप चाहे तो विजिट कर सकते हो। बाय बैंक ऑफ महाराष्ट्र का वेबसाइट है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का वेबसाइट है, एचडीएफसी बैंक का वेबसाइट है। ये उसका लुक एंड फील देखो, उसका थोड़ा अलग लुक एंड फील आपको मिलेगा। आपने बहुत सारे ई कॉमर्स वेबसाइट भी विजिट किए जैसे Amazon.com है, Flipkart.com, उसका लुक एंड फील सब व्हाट डिफरेंट फ्रॉम दिस बैंकिंग वेबसाइट्स। ठीक है, ट्राई टू विजिट सम वेबसाइट फॉर किड्स, जैसे कि किड्स को ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करने की भी बहुत सारे वेबसाइट्स है। तो उसका लुक एंड फील अगर आपने देखा तो उसका लुक एंड फील बहुत ही अलग होगा। ठीक है, तो आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा? अगर आपको इफेक्टिव वेबसाइट डिजाइन करना है तो आप किस पर्पस के लिए आपका वेबसाइट डिजाइन कर रहे हैं, अकॉर्डिंगली आपको वो वेबसाइट डिजाइन करना है कि उसका लुक एंड फील कैसे होना चाहिए। ठीक है, गुड वेबसाइट डिजाइन ऑलवेज कैटर टू द नीड्स ऑफ द यूजर। ठीक है, यू मस्ट फर्स्ट एनालाइज कि यूजर को क्या एक्सपेक्टेड है हमारे वेबसाइट से। ठीक है, क्या इन्फॉर्मेशन हमको हर एक वेब पेज के ऊपर क्लब करना चाहिए। ठीक है, ये इसका प्लानिंग आपको पहले फर्स्ट क्रिएट करना है। ऐसा कौन सा भी इन्फॉर्मेशन आप रैंडमली आप वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले नहीं कर सकते। No problem. It is very easy to display the content on the web page by writing simple HTML program. So this is not the case that कि आप randomly कौन सा भी information आप web page के ऊपर display कर सकते हैं। फर्स्ट ट्राई टू एनालाइज कि किस पर्पस के लिए आप वेबसाइट डिजाइन कर रहे हो। आप ई कॉमर्स वेबसाइट डिजाइन कर रहे हो, आप मेडिकल रिलेटेड वेबसाइट डिजाइन कर रहे हो, आप बैंक से रिलेटेड वेबसाइट डिजाइन कर रहे हो, या फिर आप कुछ एजुकेशनल ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए वेबसाइट डिजाइन कर रहे हो। तो अकॉर्डिंगली आपका जो कंटेंट होगा वेब पेज के ऊपर वो अलग अलग हो सकता है, उसका लुक एंड फील अलग अलग हो सकता है। उसके लिए आपको पहले टारगेट विजिटर्स कौन है उसको एनालाइज करना पड़ेगा। उसको क्या एक्सपेक्टेड है, क्या एक्सपेक्टेड हो सकता है, अकॉर्डिंगली यू आर सपोज टू पुट इंफॉर्मेशन एंड कंटेंट ऑन द वेब पेज। ठीक है, अगर आपको इफेक्टिव वेब पेज अगर वेबसाइट अगर क्रिएट करना है तो पहले आपको टारगेट ऑडियंस और टारगेट साइट विजिटर्स को पहले एनालाइज करना पड़ेगा कि उनको एक्सपेक्ट क्या हो सकता है। आप कैसे कुछ भी रैंडमली इंफॉर्मेशन डिस्प्ले नहीं कर सकते वेब पेज के ऊपर। ठीक है, तो पहले एनालाइज करो कि आप किस पर्पस के लिए वेबसाइट डिजाइन कर रहे हो, उसके टारगेट कस्टमर कौन विजिटर्स कौन कौन हो सकते हैं, उस विजिटर को क्या 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 एक्सपेक्ट हो सकता है कि वो इन्फॉर्मेशन आपके वेब पेज पे आना चाहिए। फर्स्ट डू द स्टडी ऑफ दैट एंड अकॉर्डिंगली देन मूव फॉरवर्ड। अगर आपने ऐसा प्लानिंग ही नहीं किया तो आप कुछ भी रैंडमली इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कर दोगे वेब पेज के ऊपर, वो बाद में आपका जो वेबसाइट है वो उतना इफेक्टिव नहीं बन जाएगा।
Okay, so first principle of designing the effective website is define the purpose first. Okay, then second principle is communication. People on the web tend to want information quickly, so it is important to communicate clearly and make your information easy to read and digest. Okay, so through your website, actually you are going to communicate with different say site visitors. देखिए आपने क्या किया, आपका एक वेबसाइट डिजाइन किया, वो वेबसाइट पे एक बार आपने स्टोर कर दिया, पब्लिश कर दिया, तो उसके बाद करोड्स ऑफ पीपल्स और क्लाइंट्स आर गोइंग टू एक्सेस योर वेबसाइट. सो जब क्लाइंट आपके वेबसाइट को एक्सेस करेगा, मींस व्हाट एवर द इंफॉर्मेशन यू वांट टू डिलीवर टू द क्लाइंट, इट विल रीच टू द क्लाइंट इफ द क्लाइंट गो थ्रू योर वेबसाइट. क्लाइंट क्या करेगा, पहले क्लाइंट आपका वेबसाइट को ओपन करेगा और आपके वेबसाइट के ऊपर वेब पेज, हर एक वेब पेज के ऊपर क्या क्या कंटेंट दिया है वो रीड करेगा. ठीक है, तो वो कंटेंट जो आपने प्रेजेंट किया है वेब पेज के ऊपर, वो अगर सम सिंपल लैंग्वेज में इजी टू अंडरस्टूड है, ठीक है, तो इजीली जो आपको रिप्रेजेंट करना है, जो अभी आपको मीन्स आपके फीलिंग जो भी है, जो आपको वेबसाइट थ्रू क्लाइंट को देना है, वो इजीली उनके पास डिलीवर हो सकता है. मीन्स इजीली कम्युनिकेशन ऑकर्स बिटवीन द क्लाइंट एंड योर से योर बिजनेस. लेकिन अगर क्लाइंट ने आपका वेबसाइट विजिट किया है, सो जो भी कंटेंट आपके वेब पेज के ऊपर है वो इजी टू रीड नहीं है, इजीली डाइजेस्ट नहीं हो रहा है साइट विजिटर को, तो प्रॉब्लम हो जाएगा. ठीक है, तो वो क्लाइंट विजिटर क्या बोलेगा कि आपका वेबसाइट इतना इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि उसको कुछ डिफिकल्टी आ रही है आपके जो कंटेंट आपने प्रेजेंट किया है वेब पेज के ऊपर, वो समझने के लिए उसको दिक्कत हो रही है. ठीक है, मीन्स instead of writing lengthy paragraphs, you can write different types of slogans on the web page. You can display some types of slogans, so जो रीड करने के लिए भी इजी होता है, और उसमें आपके जो भी फीलिंग्स वो डायरेक्टली एक्सप्रेस होते हैं साइट विजिटर्स को. ठीक है, मीन्स जब भी कुछ भी कंटेंट आप जब वेब पेज के ऊपर प्रेजेंट करते हो, तो ट्राई टू पुट इट इन द फॉर्म ऑफ स्लोगन्स, कुछ फ्रेज के साथ अगर आपने रिप्रेजेंट किया, तो या विजिटर उसको इजीली रीड भी कर सकता है, और जो भी फीलिंग्स आपको मींस देना है विजिटर्स को, वो इजीली उसको कैप्चर कर सकता है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग द लेंथी पैराग्राफ. तो लेंथी पैराग्राफ कौन पढ़ते बैठेगा, जब कोई भी साइट विजिटर अगर वेबसाइट को एक्सेस कर रहा है, तो कोई भी यूजर लेंथी पैराग्राफ रीड नहीं करेगा. जो भी फीलिंग्स, जो भी मींस आपको इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करना है, वो आपने बहुत बड़े पैराग्राफ में दिया है, तो नो साइट विजिटर विल गो टू दैट पैराग्राफ्स. बट लेकिन वही जो पैराग्राफ में लिखा है, वही अगर आपने स्मॉल स्लोगन्स या तो फिर फ्रेज में अगर रिप्रेजेंट किया वेब पेज के ऊपर, तो वो कस्टमर को, साइट विजिटर को इजी हो जाएगा रीड करने के लिए और समझने के लिए. ठीक है, तो accordingly then that visitor will say yes, this website is somewhat effective website and so. ठीक है, प्रॉपर हेडिंग आपको देना है, प्रॉपर सब हेडिंग्स आपको अरेंज करना है. ठीक है, अगर कुछ बुलेट पॉइंट्स है, तो वो भी आप यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ लेंथी पैराग्राफ्स. ठीक है, इट विल मेक योर वेबसाइट मोर इफेक्टिव. ठीक है, some effective tactics to include your web design include organizing information using headlines and sub headlines. Try to put some headlines at the beginning of the web page, तो समझ में आएगा कि इस वेब पेज पे क्या दिया है. जैसे कि देखो, ये भी एक इफेक्टिव वेब पेज, इस वेब पेज पे क्या दिया है, तो ये 10 प्रिंसिपल्स यहाँ पे दिए इफेक्टिव वेबसाइट के लिए. तो देखो, एक प्रॉपर हेडिंग यहाँ पे दिया हुआ, तो इस पेज में नीचे अगर मैंने स्क्रॉल किया, तो मुझे 10 प्रिंसिपल जो है इफेक्टिव वेबसाइट के, वो मिलने वाले हैं. ठीक है, लाइक यू शुड गिव अ प्रॉपर हेडिंग, प्रॉपर साइज, इन प्रॉपर कलर कॉम्बिनेशन का यूज करना है. ठीक है, try to put headlines, subheadings on the web page. Instead of long sentences, try to put information in the bullet points, like unordered list. You can display it on the web page, so that unordered list is easy to say understood. ठीक है, अगर आपने जो इन्फॉर्मेशन आपने पैराग्राफ्स में दिया है, सपोज लाइक दिस, बहुत लेंथी पैराग्राफ है, और इसमें जो फीलिंग्स आपने दिया है, वो अगर बुलेट पॉइंट में दिया, तो वो इफेक्टिव वाला जाएगा आपका वेबसाइट. ठीक है, तो communication. So whatever the information you present on the website, it must be easy to digest, it must be easy to read to the site visitors. Then only then that site visitor will say that your website is somewhat effective website.
ठीक है. The third principle is typefaces. Try to use proper font for textual information. ठीक है. रैंडमली आप कोई सी भी फॉन्ट में इंफॉर्मेशन डिस्प्ले नहीं कर सकते. अगर आपको आपका वेबसाइट इफेक्टिव क्रिएट करना है तो ट्राई टू यूज प्रोफेशनल फॉन्ट. प्रोफेशनल फॉन्ट में आपको जो भी इंफॉर्मेशन वो डिस्प्ले करना है वेब पेज के ऊपर. ऐसा रैंडमली कौन सा भी फॉन्ट में आप इंफॉर्मेशन डिस्प्ले नहीं कर सकते. ठीक है. जैसे कि सेरिफ फॉन्ट है, सैंस सेरिफ. ठीक है. यू कैन यूज सच टाइप ऑफ इफेक्टिव फॉन्ट to display the textual information on the web page. Okay. In general, sans serif font such as Arial and Vardhana are easier to read online. Sans serif fonts are contemporary looking fonts without decorative finishes. The ideal font size for reading easily online is 16 pixel and stick to maximum of 3 typefaces in a maximum of 3 point size to keep your design streamlined. Okay. So this principle says that whatever the textual information appear on your web page, that textual information must be in the proper font. हेडिंग मस्ट बी इन प्रॉपर साइज. जो सब हेडिंग है उसका एक अलग साइज होना चाहिए और जो भी नॉर्मल टेक्स्ट है दैट मस्ट बी इन द 16x पिक्सल साइज. ठीक है. दैट्स व्हाई सो दैट इट विल बी इजी टू रीड टू ऑल द टाइप्स ऑफ साइट विजिटर्स. चाहे साइट विजिटर्स मिडिल एज का हो या फिर सीनियर सिटीजन हो. ठीक है. देखो सबके दिखने की एबिलिटी अलग अलग होती है. सीनियर सिटीजन की बात किया जाए तो उनको स्पेक्स भी हो सकते हैं, उनका जो विजन है वो कम हो सकता है, तो इजीली उनको इंफॉर्मेशन रीड होना चाहिए. अगर सीनियर सिटीजन आपका वेबसाइट को आकर एक्सेस कर रहा है तो और आपके वेब पेज के ऊपर बहुत ही स्मॉल फॉन्ट में अगर कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है तो इट विल बिकम डिफिकल्ट फॉर दैट सीनियर सिटीजन टू गो थ्रू दैट इंफॉर्मेशन व्हाट एवर अवेलेबल ऑन द वेब पेज. Okay, so that senior citizen will say that the website is not so effective क्योंकि उसको रीड करने में दिक्कत हो रही है. आपने जो भी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट किया है वेब पेज के ऊपर वो बहुत ही स्मॉल फॉन्ट में है. ठीक है. ठीक है. सो सब टाइप्स के कस्टमर साइट विजिटर का आपको ख्याल रखना है कि कौन कौन सा साइट विजिटर हो सकते हैं. तो प्रॉपर फॉन्ट, हर एक हेडिंग का प्रॉपर फॉन्ट होना चाहिए, प्रॉपर साइज होना चाहिए. ठीक है. फॉन्ट का. ठीक है. नॉर्मल अभी देखो यही अगर आपने इमेजिन किया सपोज इस वेब पेज को तो इस सफिशिएंट फॉन्ट टू रीड बाय द सीनियर सिटीजन एज वेल एज यंगर पीपल्स. ठीक है. कोई भी अगर पर्सन किसी भी एज का हो तो ये जो पैराग्राफ है रीड करने के लिए इजी है. ठीक है. ज्यादा बड़ा फॉन्ट भी नहीं है, एकदम ज्यादा बारीक फॉन्ट भी नहीं है, स्मॉल फॉन्ट भी नहीं है. ठीक है. इस रेगुलर इट मे बी इन 16px मे बी. ठीक है. तो यही अगर इंफॉर्मेशन एकदम स्मॉल फॉन्ट में दिया होता तो थोड़ी दिक्कत हो जाती रीड करने के लिए कंटेंट. ठीक है. तो you must keep this principle in mind कि try to use proper typefaces or type fonts uh, for textual information whatever appear on the web page. Fourth principle is colors. Try to use uh, बेस्ट कलर कॉम्बिनेशन व्हाइल डिजाइनिंग योर वेबसाइट. कलर कॉम्बिनेशन जैसे कि यहाँ पे देखो व्हाइट बैकग्राउंड पे ऑरेंज कलर का ये इमेज यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है. सो यू कैन यूज डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशंस व्हाइल डिजाइनिंग योर वेबसाइट. if you want to make your website more attractive, colors combination you can use. ठीक है. so what are the color combination you will use? जैसे कि आप बॉडी को बैकग्राउंड कलर दे सकते हो, हेडिंग को कलर दे सकते हो. ठीक है. हेडिंग को बैकग्राउंड कलर दे सकते हो. ठीक है. color combination you can use. So what are the color combination you will use? That must be uh, effective to make your website more effective. अगर ऐसा कलर कॉम्बिनेशन आपने यूज किया है जो दिखने में ही बहुत एकदम डार्क कलर या तो फिर एकदम लाइट कलर अगर आपने यूज किया है तो जो लुक एंड फील आपके वेबसाइट का रहेगा वो इतना अच्छा नहीं रहेगा. ठीक है. प्रॉपर कलर कॉम्बिनेशन आपको यूज करना पड़ेगा. ठीक है. वेल थॉट आउट color palette can go a long way to enhance the user experience. Complementary colors creates balance and harmony. Using contrasting colors for the text and background will make reading easier on the eye. है ना. जैसे कि देखो ये ऑरेंज बैकग्राउंड पे व्हाइट कलर में ये पे टेक्स्ट है तो कॉन्ट्रास्ट कलर है तो टेक्स्ट रीड करने में इजी हो रहा है यहाँ पर.
ठीक है। अगर ये जो अभी देखो ये इसको लाइट कलर हम बोलेंगे, व्हाइट कलर को लाइट और बैकग्राउंड कलर डार्क है, दोनों भी अगर लाइट कलर होते तो ये पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो जाता। ठीक है, एज्यूम करो कि बहुत ही लाइट पिंक कलर दिया है बैकग्राउंड इस इमेज पे, तो ये जो टेक्स्ट पढ़ना है वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता। ठीक है, डार्क पे लाइट अगर आपने ऐसा कॉम्बिनेशन लिया, डार्क बैकग्राउंड पे लाइट कलर में जो टेक्स्ट है, तो वो रीड करने भी इजी रहेगा। ठीक है, so like you are supposed to use proper color combination in order to make your website effective. ठीक है, कलर कॉम्बिनेशन आपको प्रॉपरली यूज करना है। Vibrant colors create emotions and should be used sparingly. Last but not least, white spaces, negative spaces is very effective at giving your website a modern and uncluttered look. Fifth principle says that images. You try to use images as and when required. Try to put different types of images on the web page instead of writing the paragraphs. है ना, जो पैराग्राफ से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन अगर व्यूअर को देना है, वही इन्फॉर्मेशन अगर आपने इमेज के फॉर्म में दिया तो इट विल बी बेटर, बिकॉज ऑलवेज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज इजी टू अंडरस्टूड। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज ऑलवेज इजी टू अंडरस्टूड इंस्टेड ऑफ द सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ। ठीक है, अगर मुझे कुछ मैसेज अगर साइट विजिटर को देना है और वो मैसेज अगर मैंने टेक्सचुअल पैराग्राफ के फॉर्म में दिया तो उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा, लेकिन वो पैराग्राफ में क्या लिखा है वही अगर मैंने उससे रिलेटेड इमेज अगर वहां पे डिस्प्ले किया तो इट विल बी बेटर। ठीक है, बिकॉज graphical representations are always easy to understood, and that's why when you travel on the road जो भी इंस्ट्रक्शन ड्राइवर को दिए जाते हैं वो टेक्सचुअल फॉर्म में नहीं होते, वो इमेज के फॉर्म में होते। ठीक है, फॉर एग्जांपल फॉर स्पीड ब्रेकर ऐसा नहीं लिखा होता कि स्पीड ब्रेकर का एक सिंबल दिया होता है रोड के साइड में, तो ड्राइवर को इजीली समझ में आता है कि आगे स्पीड ब्रेकर हो सकता है। या तो फिर स्कूल अहेड का भी एक नोटेशन है प्रॉपर, जैसे कि स्कूल बैग लिए एक बॉय है, सपोज वो रोड क्रॉस कर रहा है, ऐसा एक इमेज रोड पे डिस्प्ले होता है तो ड्राइवर को इजीली समझ में आता है कि आगे स्कूल हो सकता है, तो स्पीड को कम करना है यहाँ पर, समथिंग लाइक दैट। तो अगर वही लिखा होता तो बहुत सारे ऐसे ड्राइवर्स उनको पढ़ना नहीं आता तो वो समझ नहीं पाते कि आगे स्कूल है या नहीं है। ठीक है, hope you understood this कि ग्राफिकल इंफॉर्मेशन, दैट्स व्हाई जो भी रोड पर आप जब ट्रैवल करते हो तो बहुत सारे इंस्ट्रक्शन जो ड्राइवर के जो देने होते हैं वो ग्राफिकल फॉर्म में होते हैं, ना कि टेक्सचुअल फॉर्म। ठीक है, तो वही कंसेप्ट अगर आपने देखो तो आपने अगर बहुत सारे वेबसाइट अगर विजिट किया तो इमेजेस के फॉर्म में आपको इमेजेस आपको ज्यादा दिखने को मिलेगी वेब पेज के ऊपर। ठीक है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग द पैराग्राफ्स, इमेज try to put a related image on the web page. Okay, it will be effective. Okay, navigation, next principle is navigation. It should be easy to navigate your website. ना वेबसाइट क्या होता है, इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। एक वेबसाइट के बहुत सारे वेब पेजेस हो सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ वेब पेजेस डिपेंड ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द वेबसाइट। ठीक है, अगर कॉलेज से रिलेटेड कुछ वेबसाइट है तो एक वेबसाइट के ज्यादा से ज्यादा 100 या तो फिर 200 वेब पेजेस हो सकते हैं, 100 से 200 वेब पेजेस हो सकते हैं। लेकिन वही अगर बैंक का अगर वेबसाइट है तो उसके 500 वेब पेजेस हो सकते हैं। वही अगर फ्लिपकार्ट या तो फिर अमेजोन का वेबसाइट है तो 10,000 वेब पेजेस आर पॉसिबल फॉर अ सिंगल वेबसाइट। ठीक है, तो वेबसाइट इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, so your website must provide easy navigation so that site visitor should easily go through all the web pages of the website. आपको नेविगेशन इस तरह से प्रोवाइड करना है कि विजिटर्स को सारे वेब पेजेस है तो फिर जो रिक्वायर्ड वेब पेजेस वो उसको इजीली विजिट करते आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक स्पेसिफिक वेब पेज के ऊपर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आने वाला है, दूसरा इंफॉर्मेशन दूसरे वेब पेज के ऊपर होगा, थर्ड रिलेटेड इंफॉर्मेशन विल बी ऑन थर्ड पेज। ठीक है, सारे वेब पेज विजिटर एट अ टाइम विजिट नहीं कर सकता। ठीक है, तो जो भी इंफॉर्मेशन उस विजिटर को चाहिए तो कौन से पेज पे लोकेट है वो डायरेक्टली उसको नेविगेट इजीली करते आना चाहिए। इतना इफेक्टिव आपका वेबसाइट होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि अगर आपने कॉलेज का वेबसाइट देखा तो मुझे अगर सपोज व्हेन यू ओपन द वेबसाइट यू कैन व्यू द होम पेज ऑफ द वेबसाइट। एज्यूम करो कि मैं नया साइट विजिटर हूँ, मुझे पता नहीं कि मुझे एज्यूम करो कि मुझे बीबीएसीए के लिए एडमिशन लेना है, तो मुझे पहले बीबीएसीए का इंफॉर्मेशन चाहिए, कौन कौन से सब्जेक्ट्स है, कौन कौन से कोर्सेस है।
तो देखो हमारे कॉलेज की वेबसाइट ने एक इजी नेविगेशन प्रोवाइड किया है, कोर्सेज का एक मेनू प्रोवाइड किया है। कोर्सेज में आप कोर्सेज देख सकते हैं कि इस कॉलेज में कौन कौन से कोर्सेज के लिए एडमिशन होता है, ठीक है। सो जिस कोर्स पे भी आपको एडमिशन लेना है उस कोर्स पे क्लिक करो, उसका इन्फॉर्मेशन आपकी स्क्रीन पे इजीली आ जाएगा। तो कितना इजी नेविगेशन दिया है यहाँ पर, जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो इजीली मिल रहा है, ठीक है। अगर ये यहाँ पे मेनू दिया नहीं होता तो इट बिकम वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड वेयर इज द बीपीएससीए इन्फॉर्मेशन, ठीक है। So you should provide easy navigation so that site visitors should go through all the different web pages of the website, और साइट विजिटर को इजीली कोई सा भी वेब पेज इजीली एक्सेस करते आना चाहिए। जो भी वेब पेज उसको एक्सेस करना है वो इजीली एक्सेस होना चाहिए, उसको बोलते हैं नेविगेशन। मुझे अभी लाइब्रेरी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो लाइब्रेरी का एक सेपरेट टैब दिया है यहाँ पर, ठीक है। तो वंस यू क्लिक ऑन द लाइब्रेरी टैब यू विल गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द लाइब्रेरी, ठीक है। So navigation should be easy. Navigation is about how easy it is for people to take action and move around your website. Okay. When site visitors visit your website, that site visitor will go around your website. That site visitor will try to visit different web pages of your website. Okay. You must provide appropriate hyperlinks on your website so that site visitors को easy हो जाएगा कि सारे वेब पेज को कैसे विजिट कर सके, और जो भी उसको वेब पेज एक्सेस करना है वो इजीली उसको एक्सेस करते आना चाहिए। इतना इजी नेविगेशन आपको प्रोवाइड करना है, तब जाके साइट विजिटर बोलेगा कि आपका जो वेबसाइट है वो इफेक्टिव वेबसाइट है। लेकिन अगर आपने जो नेविगेशन प्रोवाइड किया वो समवट डिफिकल्ट नेविगेशन आपने प्रोवाइड किया है, जो इन्फॉर्मेशन जो वेब पेज विजिटर को एक्सेस करना है वो उसको प्रॉपरली क्विकली नहीं मिल रहा है, तो इट्स वन ऑफ द फैक्टर फॉर इफेक्टिव वेबसाइट। अगर आपने इजी नेविगेशन प्रोवाइड नहीं किया है, साइट विजिटर को जो वेब पेज एक्सेस करना है वो इजीली अगर एक्सेस नहीं कर पा रहे तो आपका वेबसाइट विजिट नहीं करेगा। दैट साइट विजिटर विल ट्राई टू चूज अदर ऑप्शंस, other website. Okay? Some tactics for effective navigation include a logical page hierarchy using breadcrumbs, designing clickable buttons, hyperlinks, and there are different ways so that you can make or create easy navigations. Next principle is grid-based layout. Placing content randomly on your web page can end up with a hazard appearance that is messy. So मैंने आपको पहले ही बोला कि अगर रैंडमली अगर आपने कुछ इंफॉर्मेशन अगर डिस्प्ले किया वेब पेज के ऊपर तो आपका वेबसाइट इफेक्टिव नहीं करा जाएगा। लेकिन अगर आपने प्रॉपर लेआउट अगर यूज किया है, जिसके ऊपर पहले हेडिंग आना चाहिए, राइट साइड पे आपको प्रॉपर नेविगेशन प्रोवाइड करना है, मिडिल सेक्शन में एक्चुअल कंटेंट आना चाहिए, ठीक है। अगर आपने कुछ इस तरह से अगर आपने लेआउट फॉलो किया तो इट्स वन ऑफ द फैक्टर फॉर इफेक्टिव वेबसाइट। जैसे कि देखो यहाँ पे मिडल में ही सिर्फ कंटेंट आ रहा है, ठीक है, कंटेंट मिडल में आ रहा है। यही कंटेंट अगर मैंने यहाँ पर राइट साइड या तो फिर लेफ्ट साइड में डिस्प्ले किया होता तो थोड़ा लेआउट प्रॉपर फॉलो नहीं किया होगा, हम ऐसे बोल सकते थे, ठीक है। राइट साइड में जनरली पहले हेडिंग आना चाहिए, ठीक है, वेब साइड या तो फिर वेब पेज का हेडिंग, उसमें बाद राइट साइड में नेविगेशन लिंक्स होना चाहिए, प्रॉपर मेनू ऑप्शंस होने चाहिए, और जो भी कंटेंट हो मिडल में आना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर W3 का साइट भी अगर आपने विजिट किया w3schools.com, ठीक है, जो लेआउट उन्होंने यूज किया है प्रॉपर लेआउट, ठीक है। देखो पहले यहाँ पर हेडिंग है, यहाँ पे प्रॉपर मेनू ऑप्शन उन्होंने दिए हैं, तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स आप व्यू कर सकते हो, नोट्स उसके व्यू कर सकते हो, और मिडल, ये जो मिडल पार्ट है जहाँ पर मेरा एरो है यहाँ पर एक्चुअल कंटेंट आ रहा है, और राइट साइड पे उन्होंने नेविगेशन दिया है, ठीक है। इस w3school.com के बहुत सारे वेब पेजेस है, ठीक है, सारे वेब पेजेस का यहाँ पे लिंक है। वेब पेज के ऊपर क्लिक किया तो वो एचटीएमएल के बारे में इंफॉर्मेशन मिडिल सेक्शन में यहाँ पे प्रॉपर्ली व्यू हो रहा है। लेफ्ट सेक्शन यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट के लिए उन्होंने फ्री छोड़ा है, एडवर्टाइजमेंट कुछ इमेजेस यहाँ पे आप व्यू कर सकते हो। मिडिल सेक्शन में प्रॉपर कंटेंट आ रहा है, तो उन्होंने एक प्रॉपर लेआउट फॉलो किया है। सो व्हेन यू विल डेवलप द वेबसाइट यू मस्ट फॉलो प्रॉपर लेआउट। जैसे कि मिडिल में इंफॉर्मेशन आना चाहिए आपको, टॉप सेक्शन में पहले आपको हेडिंग, अगर आपको कुछ हेडिंग या तो फिर लोगो डिस्प्ले करना है आपके बिजनेस का, कंपनी का, तो पहले यहाँ पे लोगो आना चाहिए। देखो यानी इन्होंने यहाँ पे W3 स्कूल्स का यहाँ पे लोगो दिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मेनू ऑप्शन है, यहाँ पर भी लेफ्ट साइड में मेनू ऑप्शन है और मिडल में कंटेंट आ रहा है, ठीक है।
you try to use different proper header and footer to your website. This is called as footer of the website. footer में आपको देना होता है कि या वेबसाइट का कॉपीराइट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे देना होता है फुटर में, ठीक है, ऑल राइट रिजर्व एंड समथिंग लाइक दैट, ठीक है, इसको हम बोलेंगे फुटर ऑफ द वेबसाइट. सो बिगिनिंग में हेडिंग आना चाहिए, लेफ्ट साइड में प्रॉपर नेविगेशन मेनू आना चाहिए, मिडल में एक्चुअल कंटेंट, राइट हैंड साइड में एडवर्टाइजमेंट के लिए इमेजेस है तो फिर कुछ एनिमेटेड वीडियोस आप वहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हो. फुटर में प्रॉपर वेबसाइट का फुटर आना चाहिए, फुटर इंफॉर्मेशन विच इज रिलेटेड विद द कॉपीराइट्स एंड सम इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कॉपीराइट. सो यू मस्ट फॉलो प्रॉपर layout while designing your website. ऐसे आप कैसे भी रैंडमली इंफॉर्मेशन अरेंज नहीं कर सकते अगर आपको वेबसाइट डिजाइन करना है, ठीक है. अगर आपको इफेक्टिव वेबसाइट डिजाइन करना है तो यू मस्ट फॉलो अ प्रॉपर लेआउट ऑफ योर वेबसाइट. Eighth principle, F pattern design. So F pattern design says that we like to read from left to right and top to bottom. तो इसको बोलते हैं F shape design. तो जो भी आपको वेबसाइट और वेब पेज डिजाइन करना है, इट शुड बी डिजाइन अकॉर्डिंग टू एफ पैटर्न, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, ठीक है, लेफ्ट टू राइट. तो जो रीड करने वाले वो कंटेंट आप लेफ्ट टू राइट होना चाहिए, ठीक है, और लेंथी कंटेंट तो वो टॉप टू बॉटम आए, ठीक है. ऐसे लेआउट को बोलते हैं एफ लेआउट, ठीक है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड लेफ्ट टू राइट. देन लोड टाइम. Next principle for effective website is load time. Load time is what when a site visitors try to visit your website, it should get load easily in less time. अगर आपको वेबसाइट लोड होने को या अगर बहुत टाइम लग रहा है तो साइट विजिटर विल ट्राई टू इग्नोर योर वेबसाइट, है ना. लोडिंग टाइम इज व्हाट एज सून एज यू प्रेस एंटर. जैसे कि देखो मैंने acs.dypb.edu.in टाइप किया, एज सून एज आई प्रेस एंटर साइट लोड हो गया है मेरे ब्राउजर के ऊपर, ठीक है. तो आपका वेबसाइट अगर इफेक्टिव क्रिएट करना है आपको तो इजीली लोड होना चाहिए. अगर एंटर प्रेस करने के बाद उसको लोड होने को 2 मिनट लग रहा है तो कौन साइट विजिटर आपका वेबसाइट विजिट करेगा. तो उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स है. अगर आपने जो इमेजेस यूज किया है वो अगर ज्यादा साइज के इमेजेस है, ठीक है, तो ऑफकोर्स इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम टू लोड दैट इमेजेस एंड टू लोड दैट वेबसाइट, ठीक है. जैसे यहाँ पर भी इमेज है लेकिन इस इमेज को कन्वर्ट किया गया कम साइज में. जब ये वेबसाइट को डेवलप किया ओरिजिनल साइज इमेज का ज्यादा होगा, मे बी 4 MB का 5 MB का ये इमेज हो सकता है. ये जो इमेज आप व्यू कर रहे हो यहाँ पे होम पेज, कॉलेज का होम पेज पे इमेजेस है, ठीक है. ओरिजिनल इमेज बहुत उसका साइज था 8 से 10 MB तक हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द रेजोल्यूशन. तो अगर डेवलपर ने वो 8 से 10 MB का इमेज यहाँ पे डिस्प्ले किया होता तो बहुत टाइम लगता है वेब पेज को लोड होने के लिए. अभी जैसे मैंने इंटरफेस किया इजीली विद इन अ सेकंड वेबसाइट पूरा लोड हो चुका है. तो डेवलपर ने क्या किया था कि ये वेबसाइट जब डेवलप किया उस फोटो इमेज को पहले ही उन्होंने कन्वर्ट किया था जेपीजी फाइल में, या तो उसको कॉम्प्रेस किया गया है, इमेज को केबी में कॉम्प्रेस किया है. सो बहुत कम टाइम लिया इमेज को लोड होने के लिए और पूरा वेबसाइट पूरा लोड हो चुका है. बहुत सारे इमेजेस यहाँ पे लोड किए हैं, इंसर्ट किए इस इमेज इस वेब पेज के ऊपर. जैसे कॉलेज का इमेज है, ठीक है, ये एक इमेज है और ये तीसरा साइट मैप, ये थर्ड इमेज है, ठीक है. 3 इमेजेस है और तीनों इमेज भी अगर 4-4 5-5 MB के होते तो वेबसाइट को लोड होने के लिए कितना टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है, ठीक है. और हर एक साइट विजिटर के पास सेम स्पीड का कनेक्शन तो नहीं हो सकता है ना. कोई मोबाइल से एक्सेस कर रहा है, कोई लैपटॉप से एक्सेस कर रहा है, कोई पुराने कंप्यूटर से एक्सेस कर रहा है वेबसाइट. तो सबके लिए वो इजीली एक्सेस होना चाहिए. यू शुड कीप इन माइंड कि साइट विजिटर क्या कौन हो सकता है, उसके पास कौन कौन से स्पीड का इंटरनेट कनेक्शन हो सकता है. किसी के लिए भी दिक्कत नहीं होना चाहिए. आपका वेबसाइट अगर कोई एक्सेस करना चाहता है तो इजीली लोड होना चाहिए आपका वेबसाइट, ठीक है. लोड टाइम, एवरीबॉडी हेट्स अ वेबसाइट दैट टेक्स एजेस टू लोड. यस, आपने भी फील किया होगा कि अगर आप कुछ वेबसाइट रेफर करना चाहते हो और वो वेबसाइट लोड होने को टाइम लग रहा है तो आप क्या करते हो, वेबसाइट को क्लोज कर देते हो और दूसरा ऑप्शन आप ढूंढते हो कि रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको कौन से दूसरे वेबसाइट पे मिल रहा है, ठीक है. यू विल ट्राई टू अवॉइड द वेबसाइट विच टेक लॉट ऑफ टाइम टू लोड, ठीक है. तो जब आप वेबसाइट आप डेवलप करेंगे तो आपको ध्यान में रखना है कि आपका जो वेबसाइट आप डेवलप करें तो वो इजीली लोड होना चाहिए. तो आपको उसके लिए प्लानिंग करने की कौन कौन सी इमेज आपको डेवलप डिस्प्ले करना है वेब पेजेस के ऊपर,
उसका साइज क्या हो सकता है, उसको कन्वर्ट करने की जरूरत है या नहीं है, एंड अकॉर्डिंगली ट्राई टू पुट दोस इमेजेस ऑन द वेब पेज so that that website will get loaded easily, quickly, within a second. Tips to make page load times more effective, including optimizing image sizes. इमेज साइज को ऑप्टिमाइज करो, ट्राई टू रिड्यूस द साइज ऑफ द इमेजेस. ओरिजिनल साइज जो भी है इमेज का 8 से 10 MB का अगर साइज है तो ट्राई टू रिड्यूस दैट साइज, ट्राई टू कन्वर्ट दैट इमेज इनटू केबी, किलोबाइट में उसको ट्रांसफर करने कन्वर्ट करने की कोशिश करो. कन्वर्ट करने के बाद वो इमेज को आपको डिस्प्ले करना है वेब पेज के ऊपर. कंबाइनिंग कोड इनटू सेंट्रल सीएसएस और जावास्क्रिप्ट फाइल, दिस रिड्यूसेस एचटीटीपी रिक्वेस्ट and minify HTML, CSS, JavaScript compress to speed up the load time. Try to use CSS. ठीक है, और try to reduce the code while developing the website. ठीक है, अगर CSS का यूज अगर आप करते हो तो आप HTML का कोड को रिड्यूस कर सकते हैं. By using a limited coding, you can make your website more attractive because CSS provide lot of properties. ठीक है, instead of writing code again and again in HTML, by using CSS property, you can within a less code you can make your web page more attractive by applying lots of effects. ठीक है, so ये कुछ tips यहाँ पे दिया हुआ है so that your website can be load quickly within a seconds. Last principle is mobile friendly. Whatever the website you will design, it must be mobile friendly. ऐसा नहीं कि आपने जो वेबसाइट आपने डिजाइन किया वो प्रॉपर विजिबल हो रहा है लैपटॉप के ऊपर ही. वही वेबसाइट अगर आपने मोबाइल फोन थ्रू एक्सेस किया तो प्रॉपरली विजिबल नहीं हो रहा है कंटेंट. सो दिस शुड नॉट हैपन. योर वेबसाइट शुड बी मोबाइल फ्रेंडली. ठीक है, बिकॉज इन टुडेज एरा मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर यूजिंग स्मार्टफोन टू एक्सेस द वेबसाइट्स. ठीक है, लेकिन आपने आपका वेबसाइट डेवलप किया है लेकिन वो मोबाइल फोन पे प्रॉपरली व्यू नहीं हो पा रहा है तो कस्टमर या तो साइट विजिटर क्या बोलेगा कि साइट इफेक्टिव नहीं है. ठीक है, तो आपका जो भी वेबसाइट आप डेवलप कर रहे हो मोबाइल फ्रेंडली वो होना चाहिए. चाहे आप कौन से भी डिवाइस से आपका वेबसाइट एक्सेस करे वो इजीली एक्सेस होना चाहिए. चाहे वो मोबाइल फोन हो, स्मार्टफोन हो, लैपटॉप हो, कंप्यूटर्स हो, डेस्कटॉप हो, कौन से भी डिवाइस से आपका वेबसाइट इजीली एक्सेस होना चाहिए. तो यहाँ पर कुछ प्रिंसिपल दिए फॉर डेवलपिंग द इफेक्टिव वेबसाइट. ठीक है, तो पहला कंसेप्ट इफेक्टिव वेबसाइट क्या है, मींस कि अगर आपका वेबसाइट इफेक्टिव है तो ही साइट विजिटर्स आपका वेबसाइट को विजिट करेगा. ठीक है, नहीं तो साइट विजिट के बाद बहुत सारे ऑप्शन अदर ऑप्शंस होते हैं वेबसाइट एक्सेस. ठीक है ना, क्योंकि एक सिंगल वेबसाइट नहीं है ना. जैसे कि मैंने आपको बोला कि अगर आपको कुछ ई कॉमर्स रिलेटेड वेबसाइट एक्सेस करना है, आपको अगर मोबाइल फोन परचेज करना है तो एक ही ऑप्शन नहीं है आपके पास अमेजोन का. आपके पास अमेजोन का ऑप्शन है, आपके पास फ्लिपकार्ट का ऑप्शन है और बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है जहाँ से आप मोबाइल फोन को परचेज कर सकते हो. तो आप कहाँ से परचेज करोगे. ठीक है, जो वेबसाइट आपको इफेक्टिव लगा वही आप रेफर करोगे ना. जो वेबसाइट आपके लिए इफेक्टिव नहीं है तो आप वो रेफर नहीं करोगे. So you must keep in mind this 10 principle if you want to design effective website. Those 10 important principles for effective websites are website design are purpose, communication, typefaces, colors, images, navigation, grid-based layout, app pattern design, load time, mobile friendly. ठीक है, तो हम यही हमने अभी यहाँ तक डिस्कस किया है. सिंप्लिसिटी, नेविगेशन, कंटेंट, ग्रिड बेस्ड लेआउट, लोड टाइम, मोबाइल फ्रेंडली. ठीक है, देन नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट वेब डिजाइन इश्यूज. तो यहाँ पे स्लाइड पे कुछ इश्यूज दिए जैसे कि ब्राउजर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, बैंडविड्थ एंड कैचे, लुक एंड फील ऑफ द वेबसाइट, पेज लेआउट एंड लिंकिंग. ऑल दीज आर द डिफरेंट वेब डिजाइन इश्यूज. ठीक है, फर्स्ट इशू इज व्हाट, browser and operating system. Web pages should be able to display across different browsers, including Internet Explorer, Firefox, Chrome, etc., etc. ठीक है, so what issue may occur when you will develop the website. जो वेबसाइट आप डेवलप कर रहे हो
try to check that whether that website is accessed by different browsers or not. ठीक है, because client may use different types of web browser to access the website. कोई client internet explorer use कर सकता है, कोई client firefox use कर सकता है, few customers site visitor में use chrome, कुछ customers opera use कर सकते हैं. So बहुत सारे options available है. There is only one application through which website can be accessed. That application is nothing but the web browser. वो वेब ब्राउजर एप्लीकेशन एक ही नहीं है, बहुत सारे एप्लीकेशन है. भी कौन सा यूजर कौन सा एप्लीकेशन यूज करेगा, दैट वी कैन नॉट से. तो लेकिन आप जो भी वेबसाइट आप एक्सेस डेवलप कर रहे हो, वो सारे वेब ब्राउजर पे इजीली एक्सेस होना चाहिए विदाउट एनी इशू, विदाउट एनी प्रॉब्लम. दिस इशू नहीं ऑकर कि आपने बहुत टाइम ऐसे फिल किया होगा कि आपने अगर क्रोम यूज किया तो प्रॉपर आपका फॉर्म है, या तो फिर इंफॉर्मेशन सबमिट नहीं हो रहा है, या तो फिर कुछ साइट में दिया होता है कि फॉर बेटर यूज फायरफॉक्स, फॉर बेटर फंक्शन एंड फीचर यूज फायरफॉक्स, है ना. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. आपका जो वेबसाइट है वो सारे वेब ब्राउजर थ्रू इजीली एक्सेस होना चाहिए विदाउट एनी लिमिटेशंस. सच टाइप ऑफ इशू में ऑकर व्हाइल डेवलपिंग द वेबसाइट की कुछ ब्राउजर जो है आपके कोड को सपोर्ट नहीं कर रहे. सपोर्ट जो जो कोड आपने लिखा है वेबसाइट डिजाइन करने के लिए, कुछ ऐसे वेब ब्राउजर है वो कोड को सपोर्ट नहीं कर रहे, तो वो फंक्शनलिटी आपको फिर मिलेगा नहीं साइट विजिटर्स को, है ना. जैसे कि अगर मैंने मैंने वेबसाइट का कोडिंग लिखा है, उसमें ऐसे फंक्शंस लिखे, ऐसा कोड है, ऐसा कोड है जो क्रोम ही सपोर्ट कर रहा है, वो कोड अगर फायरफॉक्स सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो वो फंक्शनलिटी उस साइट विजिटर को नहीं मिलेगा. मेरे वेबसाइट का जो फंक्शनलिटी मैंने डेवलप किया है जिस कोड थ्रू, वो कोड अगर फायरफॉक्स सपोर्ट नहीं कर रहा है सपोज, तो वो फंक्शन वो साइट विजिटर को नहीं मिलेगा. वो फीचर जो भी डेवलप किया है वो साइट विजिटर को नहीं मिलेगा. ठीक है. तो सच टाइप ऑफ इशू में ऑकर व्हाइल डेवलपिंग द वेबसाइट की आपने जो कोड लिखा है, आपने जो प्रोग्राम लिखा है, it may happen that that code is not supported by other not all by all browsers. In that situation, whatever the browser that does not support that code, those site visitor will not get that features and functions. Okay, just many students. The next issue that may occur while designing the website is bandwidth and cache. Users have different connection speed, that is bandwidth, to access the website. Okay, connection speed plays an important role in designing web pages. If user has low bandwidth connection and a web page contains too many images, it takes more time to download. Okay, so you must also think about bandwidth and cache. Okay, देखो अगर आपने वेबसाइट डेवलप किया है तो आपका वेबसाइट बहुत सारे यूजर एक्सेस करने वाले हैं, तो कौन से यूजर के पास कौन से स्पीड का क्या कनेक्शन है वो आपको पता नहीं है. सो व्हाटएवर द कनेक्शन टाइप इज with that particular site visitor,
आपका जो भी वेबसाइट है वो इजीली लोड होना चाहिए, चाहे विजिटर का जो कनेक्शन हो ब्रॉडबैंड कनेक्शन हो या तो फिर बहुत ही कम स्पीड का उनका कनेक्शन हो, लो स्पीड का कनेक्शन हो या तो फिर हाई मिडल स्पीड का कनेक्शन हो या तो फिर हाई स्पीड का कनेक्शन हो, आपका वेबसाइट इजीली लोड होना चाहिए। दैट इज द रिक्वायरमेंट। तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि ट्राई टू अवॉइड टू मेनी इमेजेस ऑन द वेब पेज। एक वेब पेज के ऊपर मैक्सिमम 2 to 3 वेब पेज इमेजेस को आप डिस्प्ले कर सकते हो। जितना ज्यादा इमेजेस आप प्रेजेंट करोगे वेब पेज के ऊपर, उतना टाइम ले सकता है वेब पेज को लोड करने के लिए। ठीक है, तो यू मस्ट थिंक कि सारे साइट विजिटर के पास सेम हाई स्पीड का कनेक्शन नहीं होगा। अलग अलग विजिटर के पास अलग अलग स्पीड का कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन हो सकता है। तो इजीली आपका वेबसाइट लोड होना चाहिए। ठीक है, अगर लोग स्पीड का कनेक्शन भी हो तो इजीली आपका वेबसाइट लोड होना चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि ट्राई टू यूज लिमिटेड इमेजेस ऑन द वेब पेजेस, और जो भी इमेज आप यूज कर रहे हो वो कॉम्प्रेस साइज में होना चाहिए, कम साइज में होना चाहिए। ठीक है, सो ऐसे इशू हो सकते हैं कि अगर आपने देखो बहुत सारे इमेजेस आपने वेब पेज के ऊपर इंसर्ट किए हैं और हर एक इमेज का साइज बहुत ज्यादा है, तो ऐसे साइट विजिटर जिसका स्लो इंटरनेट कनेक्शन है तो वो साइट विजिटर आपका वेबसाइट लोड ही नहीं कर पाएगा। तो अगर वेबसाइट लोड ही नहीं हुआ तो फिर वो कैसे आपके वेबसाइट को रेफर करेगा। आपको एम क्या है कि ज्यादातर विजिटर्स ने हमारा वेबसाइट को रेफर करना चाहिए, है ना। तो यू मस्ट कीप these issues in mind while developing the website. लुक एंड फील ऑफ द वेबसाइट, जो भी लुक एंड फील है, कलर कॉम्बिनेशन है, वो अच्छा लुक एंड फील आपको देना है जब आप वेबसाइट को डेवलप करेंगे तो। ठीक है, बैड लुक एंड फील अगर आपकी वेबसाइट का है तो साइट विजिटर्स विल ट्राई टू इग्नोर योर वेबसाइट टू एक्सेस। पेज लेआउट एंड लिंकिंग, प्रॉपर लेआउट आपको यूज करना है। यू मस्ट डिस्प्ले प्रॉपर हेडर, हेडिंग आपको आपके हर एक वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले करना है। प्रॉपर मेन कंटेंट आपको मिडिल सेक्शन में डिस्प्ले करना है। लेफ्ट साइड में साइड बार होना चाहिए जहां पर आप नेविगेशन दे सकते हो। प्रॉपर फुटर होना चाहिए हर एक वेब पेज के नीचे, दैट विल गिव यू द कॉपीराइट्स एंड क्रेडिट्स अबाउट योर वेबसाइट। ठीक है, सो ऐसे प्रॉपर लेआउट, आपसे रैंडमली कैसे भी आप इंफॉर्मेशन प्रेजेंट नहीं कर सकते वेब पेज के ऊपर। ठीक है, तो प्रॉपर लेआउट जैसे कि यहाँ पे आई थिंक नेक्स्ट वेब पेज पे लेआउट दिया है, जैसे कि अगर आप वेबसाइट डेवलप कर रहे हो तो कुछ इस तरह से लेआउट आपका हर एक वेब पेज का होना चाहिए। यहाँ पे प्रॉपर लोगो आना चाहिए राइट हैंड साइड में, बाद में उसके बाद हेडिंग आना चाहिए आपके बिजनेस का या तो फिर आपकी कंपनी का जिसके लिए भी आपने वेबसाइट डेवलप किया है उसका हेडिंग आना चाहिए। देन यहाँ पे बहुत सारे मेनू ऑप्शंस, ठीक है, ये मेनू ऑप्शन आने चाहिए। ये साइड, इसको साइड बार बोलते हैं। यहाँ पे नेविगेशन है, सो दैट यहाँ पर क्लिक करते हैं करके बहुत सारे दूसरे वेब पेज को विजिट कर सकते हैं। मेन कंटेंट मिडल में आएगा, लास्ट में हर एक वेब पेज के लास्ट में फुटर इंफॉर्मेशन आना चाहिए। तो यू मस्ट फॉलो अ प्रॉपर पेज लेआउट। ठीक है, सो ये जो लेआउट है दैट इज सिमिलर टू दिस w3schools.com। w3schools का देखो आपने अगर स्ट्रक्चर देखा, लेआउट देखा तो कुछ इस तरह से ही है ना। लोगो आ रहा है पहले w3schools.com का, लेकिन यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट के हाइपरलिंक उन्होंने दिया है कि कौन से सब्जेक्ट को हाइपरलिंक चाहिए। यहाँ पर साइड बार पे नेविगेशन दिया कि आपको कौन से सब्जेक्ट का क्या टॉपिक एक्सेस करना है, और मेन कंटेंट यहाँ पे दिख रहा है, और हर एक वेब पेज पर फुटर भी दिया हुआ है ना। अगर आपने w3schools.com का वेबसाइट को अगर रेफर किया तो सेम लेआउट है, देखो सेम लेआउट देखो, ये मेनू ऑप्शन है, ये हाइपरलिंक है। जावास्क्रिप्ट के नोट्स चाहिए तो जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड नेविगेशन यहाँ पर आ रहा है। जावास्क्रिप्ट के क्लिक किया तो जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड नेविगेशन जो इंट्रोडक्शन है, तो इंट्रोडक्शन का मिडिल सेक्शन में पेज आ गया हमारा पर, आउटपुट का ये पेज आ गया। सीएसएस पे क्लिक किया तो ये देखो नेविगेशन चेंज हो रहा है यहाँ पे साइड बार में। अब ये जो नेविगेशन है सीएसएस से रिलेटेड है। सीएसएस का इंट्रोडक्शन, हाउ टू यूज सीएसएस बॉक्स मॉडल, तो ये जहां पर भी मैं क्लिक कर रहा हूँ उसका मिडिल सेक्शन में इंफॉर्मेशन या तो फिर एक्चुअल कंटेंट आ रहा है। एचटीएमएल के ऊपर क्लिक किया तो एचटीएमएल से नेविगेशन यहाँ पे आ गया साइड बार में। ठीक है, और नेविगेशन पे क्लिक किया, हाइपरलिंक के ऊपर क्लिक किया तो एप्रोप्रिएट कंटेंट आ रहा है। और अगर आपने देखा कि हर एक पेज पे फुटर इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, तो दिस वन ऑफ द वेब पेज। अगर मैंने दूसरा वेब पेज भी एक्सेस किया तो फुटर इंफॉर्मेशन वहां पर भी है। हर एक वेब पेज प्रॉपर प्रॉपर फुटर इंफॉर्मेशन देना है, दैट विल गिव यू इंफॉर्मेशन अबाउट कॉपीराइट्स एंड क्रेडिट्स ऑफ द वेबसाइट।
राइट साइड में आप कुछ इमेजेस, एनिमेटेड इमेजेस, वीडियोस आप यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है। सो सच टाइप ऑफ प्रॉपर लेआउट यू मस्ट फॉलो while developing the website, ठीक है। Any doubt students up to this? Any doubt into this topic? No, sir. Okay, so today we discuss about the concept of effective website, top 10 principles to design effective website, and website design issues. Okay. In next lecture, today we'll stop here. In next lecture, we'll discuss about how to develop the website and how to publish the website, and then we'll complete with the chapter. ठीक है। थ्योरी कॉन्सेप्ट से वेबसाइट को डेवलप कैसे करना है, क्या क्या फैक्टर्स आपको वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए यूज करना है, देन एक बार आपका वेबसाइट डेवलप हुआ तो उसको पब्लिश कैसे करना है, उससे जो information that we'll discuss in next lecture, and then we'll complete with the chapter. Okay, till then, bye students. Leave the meeting.